Hello you all, welcome to Olive Board. As promised, I have come up with this marathon session on government schemes. As far as your government schemes is concerned, you all know last 6 months government schemes are very much important. So we'll be covering 6 months exam se 6 months pehle ki government schemes. Also, I'll be covering your reports and indices. But for reports and indices, I would ask you to just cover 3 months. 3 months of reports that came up before the examination. So let's start. Because it's a crash course, तो थोड़ा speed fast रहेगी. I would like you to cooperate. Also, I would also like to tell you that अगर आपको ये schemes पता है, if you know about the schemes, then please take a pen and paper and try to solve these questions. If you are not aware about the schemes or you have not listened the schemes, then also no issues. In schemes को cover करने में, I have also brought up this the background of the scheme as well, so that we can revise it here only. आपको बार बार कोई PDF ना खोलनी पड़े, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े. From this very session, you can actually revise all your government schemes. Now let's get started. The first scheme is about your Mahila Samman Saving Certificate. The first statement says it was launched in 2022. Okay. Just a second. Okay, the first statement says it was launched in 2022. The second statement says that it is a one-time small saving plan for the females of above 18 years of age. The second statement says that the minimum contribution is ₹1,000 and the maximum is ₹2 lakh respectively. The fixed interest rate is 7.5%, which will be credited annually. And the last statement says that partially withdrawal is allowed up to 50% of the total amount opening of the anytime after opening the account. This is what the question is. Now, if you know the answer, please attempt it. Otherwise, we'll move ahead and try to discuss the scheme. Now, if I talk about the launch year, the scheme was launched in this very year. इसी budget में इसको announce किया था. So the launch year is 2023. It's under the Ministry of Finance. You have to remember the launch year, the ministry, or if the budget outlay is there, then you have to remember that as well. Objective, if I want to tell you that objective is the financial inclusion and women empowerment, that is the objective is female is the main focus of the scheme. Now the tenure, if I want to tell you what is the tenure, it is 2 years, that is up till 2025. The ministry has said that you can get the certificates from your post offices, public sector banks, as well as some private sector banks. Please try to remember this. Earlier it was only post offices when it was announced in the budget, but later public sector banks and some private sector banks have also been allowed. Moving ahead, what are the key features of the scheme? So it is a one-time small savings plan. One time only one female can only open one account under her name, पर इसके अंदर she can deposit a minimum amount of ₹1,000 and maximum of ₹2 lakh. 1,000 amount में you can actually deposit in any sum in multiples of 100. तो 100 के multiples में like 100, 200, 300 that you can just deposit it. The single account holder type, this is a single account holder type account, मतलब joint account की facility नहीं है. Please remember that. And a guardian can open on the behalf of minor girl. That simply means सारी females allowed है. All females are allowed. 18 years वाला जो question में part था, that is wrong. Now, what are the other key features? Other key features says that there should be a time gap of 3 months between two deposits. What does this mean? Like if you have deposited 1 lakh in the month of April, now you know it's September. अब आप अगर जाओ तो आप इसके अंदर 50,000 आप डालने गए, then now you can actually deposit because यहाँ पे 3 months का गैप हो चुका है. Other than that, क्या आप यहाँ पे 1.5 लाख डाल सकते हैं? No, the maximum limit can only be is only 2 लाख. तो मतलब एक फीमेल एक अपने अकाउंट में 2 लाख से ऊपर अमाउंट नहीं डिपॉजिट कर सकती. Next thing is your interest rate is 7.5% and it is paid quarterly. Other thing is partial withdrawal. Partial withdrawal is up to 40% of the deposit, whatever deposit you have done, and that too after 1 year. 1 year से पहले you cannot take out your money. Next thing. So let us try and solve the question. Was it launched in 2022? No, it is it is in this year itself, 2023. It's a one-time saving plan, but above 18 years, no, this is not the criteria. Minor can also open. The minimum and maximum amount is ₹1,000 and 2 lakh. This is correct. Fixed interest rate of 7.5, not annually, it is quarterly. Partial withdrawal is allowed up to 50%. No, it is not 50%, it is 40%. Next thing. Also, anytime nahi hai, 1 year. After 1 year of opening the account. Next thing.
This scheme was also upgraded in this year's budget, so I thought why not incorporate here itself. तो ये scheme आपकी 2019 में आई थी, पर इस वाले बजट में इसको अपग्रेड किया था. मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट वाज इंक्रीज्ड. फॉर सिंगल अकाउंट द अमाउंट लिमिट वाज डन टू फ्रॉम 4 लाख इट वाज इंक्रीज टू 9 लाख, एंड जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख को 15 लाख कर दिया था. दैट इज द चेंजेस इन द स्कीम. Now, an individual can open more than one account. जैसे महिला सम्मान सर्टिफिकेट में only one account was permissible. यहाँ पे you can open multiple accounts. Now, about the eligibility, if I want to tell you who all are eligible, then any single adult है अगर वो single account अपना खोल सकता है, और maximum of 3 adults can jointly open their account. Other thing is the minor has to attain, अगर minor को खोलना है तो 10 years से ऊपर होना चाहिए, and guardian can also open on the behalf of minor or a person with unsound mind. Okay, the duration of the scheme will be 5 years, and deposit per annum would be interest per annum would be 7.7%. In the case of premature closure, these are the criteria. You can read them, but I don't feel कि इसके criteria से इस तरह से question आएगा. That's why let's not discuss over here. In the case of death, सारा amount with the interest will be refunded to the nominee. ये एक और स्कीम थी जो बजट में अपग्रेड करी थी. This schemes इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को, जैसे पिछले में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया था, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके 15 लाख से 30 लाख कर दिया था. दैट यू नीड टू रिमेंबर. इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. एक तो जो भी सिटीजन है अगर 60 ईयर्स और अबव का है, ही कैन अवेल द फैसिलिटी, ही और शी कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ दिस वेरी स्कीम. अदर देन दैट, अगर किसी ने VRS ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, और वो 55 years and above है, then also they can take a part in this scheme. Also, retired personnel of defense services, जो भी डिफेंस में रहे हैं, डिफेंस में सिविलियन वर्क में नहीं होने चाहिए, जो ऑफिस वर्क होता है वो वाले नहीं, डिफेंस में अगर कोई रहे हैं और उनकी एज 50 years and above है, then they can take part in this very scheme. Now, duration पिछले वाले की भी 5 years थी, इसकी भी 5 years है. डिपॉजिटर may extend the account for further period of 3 years, and the premature closure, for premature closure there are 3 criterias. अगर 1 साल से पहले क्लोज करेंगे, then the interest paid will be recovered from the deposit and balance will be paid. अगर 1 साल और 2 साल के बीच में करेंगे, in that case an amount equal to 1.5% of the deposit will be deducted और balance को pay कर देंगे. On or after 2 years, an amount equal to 1% of the deposit shall be deducted and rest would be paid. In case of the death, nominee will get all the funds, and the deposits under this the deposits made under this scheme is actually are qualified for your deduction under Income Tax Act, an important fact. Now, a very easy question, what does R in the PM Mudra stands for? I want to tell you, अगर इस तरह का कोई भी acronym है किसी भी स्कीम में, try to remember the फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनिम. देख के लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक बार स्कीम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है पीएम मुद्रा से ही, विच इज अ प्रेटी टफ क्वेश्चन. नाउ पीएम मुद्रा, व्हाट डज पीएम मुद्रा स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर रिफाइनेंस, रीडेवलपमेंट, रिडीम, रिटर्न, रेवेन्यू. प्लीज आंसर. आई होप यू हैव आंसर्ड. मूविंग अहेड, पीएम मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड. प्लीज रिमेंबर दिस. सो द आंसर ऑफ दैट आर वुड बी refinance. Now if I tell you about the launch year, it was 2015. very important. पीएम मुद्रा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द पेरेंट मिनिस्ट्री. तो वैसे तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव बोलो तो इट इज लाइक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, एमएसएमईज को लोन देने के लिए है, बट एमएसएमई की मिनिस्ट्री नहीं है, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. द 3 पिलर्स ऑफ द स्कीम आर बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड. ये इस तरह की जो लाइंस होती है, दीज आर वेरी कैची लाइंस. इफ अगर आप सब्जेक्टिव में इसको यूज कर सकते हो, बिलीव मी, और आंसर विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट. तो प्लीज अगर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन से कोई क्वेश्चन आता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से, यू कैन यूज दिस थिंग्स. नेक्स्ट थिंग है अचीवमेंट. क्या है अचीवमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो 2015 की स्कीम है तो इसको अब 8 years हो गए हैं.
अचीवमेंट गवर्नमेंट ने लिखी थी, सो हो सकता है अचीवमेंट को यू कैन कोट इट समवेयर और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है. सो लेट्स सी इसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ हुई है. कितनी क्रेडिट ग्रोथ? 23 लाख करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन फॉर 41 करोड़ लोन अकाउंट्स. सो यू कैन सी कितनी अमाउंट का क्रेडिट ग्रोथ हुआ है. अदर देन दैट इंक्लूसिव ग्रोथ भी है. वाई दे आर सेकिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव मतलब जब सारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे आर इन द दे आर टेकिंग पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. तो कैसे? 69% अकाउंट्स विमेन के हैं और 51% अकाउंट जितने भी पीएम मुद्रा में खुले हैं स्कीम के अंडर, उसमें से 51% अकाउंट बिलोंग टू SC ST OBC कैटेगरीज. तो मतलब आप देख सकते हो कितने सारे लोगों को क्रेडिट दिया है अंडर दिस योजना, और उन लोगों में विमेन का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट इट्स रीचिंग 70%. एंड SC ST एंड OBC जो वल्नरेबल जो मतलब SC ST एंड OBC कैटेगरीज है, दे आर एक्चुअली गेटिंग अबव 50%, समवेयर like above 50%. So now let us see other things about Mudra. So Mudra is a refinancing institution. If I want to explain this, then ऊपर Mudra institutions है, इनके नीचे there are banks, और banks के नीचे there are small businesses. So what does this small businesses does is they actually ask for loans under this PM Mudra Yojana from banks. So banks give them loans, and in return Mudra the institution actually refinances the bank. तो मतलब Mudra is not giving loans directly to the small businesses. That is what refinancing institution means. It provides funding to the small sector business through institutions like scheduled commercial banks, NBFCs and MFIs. MFIs are micro. MFIs are, if somebody can please tell me what are MFIs? NBFCs क्या होता है वो तो पता ही होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. व्हाट आर MFIs? माइक्रो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हाट इज लोन प्रोडक्ट्स? तो लोन प्रोडक्ट्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन आपका RBI में 2022 में पूछा था. या इट वाज आस्क्ड इन 2022. तो लोन्स की जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, विच इज योर शिशु, किशोर एंड तरुण, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर नाबार्ड एज वेल. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर. अब शिशु की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो लोन होता है इट इज अप टू 50,000. किशोर में 50,000 से 5 लाख, एंड इन तरुण इट इज अप टू 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में. नाउ इफ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना इशू किया जा सकता है अंडर पीएम मुद्रा? इट इज 10 लाख. और मिनिमम कितना इशू किया जा सकता है? 50,000 से तो कम. यू कैन जस्ट सी, राइट. नेक्स्ट थिंग, लोन्स अंडर दिस स्कीम आर कोलैटरल फ्री एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. नाउ द अदर थिंग आर टारगेट बेनिफिशियरीज. कोई भी स्कीम पढ़ते हैं टारगेट बेनिफिशियरीज उसमें इंपॉर्टेंट होता है. तो हमने देखा ही है वैसे भी, विमेन, SC ST OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को इसमें स्पेशल फोकस दिया जाएगा. दैट्स व्हाट दिस स्कीम एक्चुअली एम्स ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग, लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मीट बोथ टर्म लोन, मतलब अगर कुछ वैसे तरह की जोन है, या फिर वर्किंग कैपिटल में भी उनको कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना है, कुछ सामान चाहिए, इन दैट वे ऑल्सो दिस स्कीम विल हेल्प. बट द मेन कैच ओवर हेयर इज कौन सी एक्टिविटीज इसमें अलाउड है? मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, ट्रेडिंग अलाउड है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जो भी कुछ आता है अलाउड है. ऑल्सो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज अलाउड है. प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर दिस. देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दिस कि एग्रीकल्चर अलाउड है या नहीं है. नेक्स्ट थिंग, टू अवेल दिस लोन, टू अवेल दिस फैसिलिटी, MSMEs को ताकि आसानी हो, देयरफॉर SIDBI which actually deals with the small industries, उसने ये एक ऐप या फिर एक पोर्टल लॉन्च किया है विच इज उद्यमी मित्र पोर्टल. ट्राई टू रिमेंबर दिस. उद्यमी मित्र पोर्टल किसका है? SIDBI का है. यहाँ पे जितने भी MSMEs हैं उनको ये एक यूनिवर्सल पोर्टल है जहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नीड्स के रिगार्डिंग दे कैन रीच टू दिस पोर्टल. तो यहाँ पे उनको फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कुछ अवेल करनी है या फिर गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम है तो उसके बारे उसका रजिस्ट्रेशन और वो सब कुछ वो यहीं पे ही हो जाता है. तो इट इज एक्चुअली प्रमोटिंग योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. पीएम मुद्रा योजना में अगर आगे देखें तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ द टोटल लोन्स हैव बीन सैंक्शन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. तो जैसे मैंने बोला कि एक ये और अचीवमेंट है, इफ आई वांट टू क्लासिफाई इट एज, ये भी एक अचीवमेंट है कि 21% एंटायर लोन्स जो सैंक्शन हुए वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए हुए हैं. और मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कंडक्ट कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्पेसिफिकली. इट हैज सेड दैट इट हेल्प्ड इन जनरेटिंग ओवर 1 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2015 टू 2018. तो 2015 से 18 के बीच में एक्चुअली में इसने 1 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी थी. दैट्स वाई द योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये PIB में दिस वाज द फैक्ट, दिस आई गेस अपीयर्ड इन अप्रैल और मई मंथ. तो शिशु
के अंडर कितने लोन्स डिस्पर्स्ड किए गए हैं, तो 83% लोन्स शिशु के अंदर, मतलब 83% लोन्स 50,000 से कम के अमाउंट के हैं, किशोर 15 एंड तरुण 2%। इसमें आप रिलेटिवली याद कर सकते हो, शिशु में सबसे ज़्यादा लोन्स है। और वैसे अगर मैं अमाउंट सेक्शन की बात करूँ कि मतलब कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है उसका कितना परसेंट है, देन ऑल्सो शिशु स्टैंड्स आउट, मतलब 50,000 से कम वाले जो लोग हैं उनको ही मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, आई गेस ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। हाँ, व्हाट डज आर इन द पीएम मुद्रा स्टैंड्स फॉर? आर स्टैंड्स फॉर योर refinance. Now, please read the statements that it was launched in 2015. It is about PM Mudra only. Like I've told you, एक और question है. This is the question. It was launched in 2015. Is this right or wrong? Please tell me. क्या ये option it was launched in 2015 क्या ये सही है या गलत है? The next thing is the nodal ministry is Ministry of MSME, and Mudra is directly providing. It is not directly, it is indirectly providing. It is providing funds through banks, scheduled commercial banks. तो directly तो है ही नहीं. हाँ, 10 लाख तक की फंडिंग है, बिकॉज हमने देखा है तरुण में मैक्सिमम 10 लाख तक ही दिए जाते हैं टू स्मॉल बिजनेसेस सेक्टर थ्रू, मतलब टू स्मॉल बिजनेसेस सेक्टर, तो डायरेक्टली तो फंडिंग नहीं होती. किशोर लोन प्रोडक्ट अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड लोन्स आर ₹5 लाख. तो क्या किशोर में 5 लाख की लिमिट थी? अप टू 5 लाख की लिमिट थी किशोर में. यस, वेरी गुड. शिशु, किशोर और तरुण की जो लिमिट्स है प्लीज उसको याद कर लेना. आरबीआई में ऑलरेडी पूछी है और हो सकता है आपके नाबार्ड में भी पूछ ले. तो शिशु की लिमिट क्या है? अप टू 50,000. किशोर की लिमिट क्या है? 5 लाख से 10 लाख. और तरुण की लिमिट किशोर की लिमिट क्या है? 50,000 से 5 लाख. और तरुण की लिमिट क्या है? 5 लाख से 10 lakh. Very, very, very important. Please try to remember this. So the correct answer to this question will be second or third statements are wrong. First and fourth are right. So option number E is the correct answer. I hope you are able to give the answer by now. Next thing is another scheme, which is Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana. The scheme the question says that it was launched in 2022. The nodal ministry is Ministry of Finance. The minimum and maximum contribution under the scheme is ₹55 to ₹200 respectively. The fund will be managed by Pension Fund Regulatory Authority of India. And this fifth statement says that the person must be between the ages of 80 and 40 to avail this scheme. Now, these are the options. Please, if you know, you can actually write your answers, then we'll be moving ahead. Now, if I tell you about this PM Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana, इसको एक तो इस नाम से जानते हो, दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, अदर नेम इज दिस. तो ये दोनों ही नेम्स एक ही स्कीम, मतलब ये दोनों ही एक ही स्कीम है. It was launched in 2019. ये 2019 की स्कीम है. So this statement is incorrect. It is not 2022. It is 2019. Other statement says that it is Ministry of Labor and Employment. पर statement में क्या लिखा था? Ministry of Finance. तो नहीं, ये किसकी योजना है? Ministry of Labor and Employment. Very, very important fact. Please try to remember this. Eligibility. What is the eligibility? Eligibility is या तो 18 साल का minimum, maximum कितना? 40 years age के हिसाब से. The traders must have a GST number, मतलब GST नंबर होना चाहिए. और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 1.5 करोड़. उसकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 1.5 करोड़. द नेक्स्ट थिंग, उसका एक आधार अकाउंट से लिंक्ड बैंक अकाउंट भी, सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए. अ मेंबर ऑफ एनी अदर पेंशन स्कीम और इनकम टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल. प्लीज मार्क इट एज अ स्टार. अगर कोई और पेंशन या किसी और चीज में ही इज गेटिंग द बेनिफिट, तो इस स्कीम में बेनिफिट नहीं लेगा. जैसे मान लेते हैं कोई और स्कीम में वो एनरोल्ड है, तो किसी और पेंशन वाली स्कीम में एनरोल्ड है, देन ही और शी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी स्कीम. नाउ नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन. दिस इज द मंथली कंट्रीब्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितनी है? 55 रुपीज एंड मैक्सिमम कितनी है? ₹200. 55 रुपीज कब? जब आप 18 ईयर्स से स्टार्ट करो. और 200 रुपीज कब? जब आप 40 ईयर्स से स्टार्ट करो. सेम अमाउंट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट एज मैचिंग कंट्रीब्यूशन. जितना अमाउंट आप लोग डालोगे उतना ही गवर्नमेंट डालेगी. तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट. मिनिमम मंथली पेंशन विल बी गिवन ₹3,000 आफ्टर द पर्सन
attain the age of rupees 60. The pension fund manager is, in this case, is your LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कई आंसर ऑप्शन में PFRDA लिखा हो, तो प्लीज इसका PFRDA नहीं है, इसका LIC है. हालांकि PFRDA इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेंशन, बट हेयर द पेंशन फंड मैनेजर इज LIC. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. इन द केस ऑफ डेथ, if the subscriber dies, so the spouse will be getting the 50% of the pension as a family pension. Next thing. The question, if you can now solve the question, I have already told you the launch year is incorrect, ministry is incorrect, launch year is 2019, ministry is Ministry of Labour and Employment, minimum and maximum contribution is correct, the fund is not managed by PFRDA, it is by LIC, the person must be between 18 to 14 years of age, this is also correct. So the correct option, so the correct code here is 3 and 5. Yeah. So option number B is correct. Now, government e-marketplace, very, very important, because it somewhere deals with your small, micro and small businesses only. That's why government e-marketplace is very important. News में इसलिए था, वैसे तो news में काफ़ी आता रहता है, but news में इसलिए था because of its remarkable achievement. The PIB, there was an article that shows that GEM portal it has surpassed 1 lakh crore of gross merchandise value milestone in record time. What was the record time? पिछले साल it took GEM portal to cross this value. It took 243 days, but this year in only 145 days they were able to cross the value of 1 lakh crore of gross merchandise value. Now, Ministry of Defense is the leading procurer. This fact you also need to remember कि leading कौन सी ministry है जेम में, कौन सबसे ज़्यादा procure कर रहा है, then it is your Ministry of Defense. Also it contributes 16% of the, और total का 16% अकेला जो टोटल मर्केंडाइज प्रोडक्ट जो कि जेम मार्केट प्लेस पे मिलते हैं उसका 16% अकेला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही लिया है. दैट इज व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. वो तो था कि अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, व्हाई वाज दिस इन न्यूज़, पर अभी स्कीम क्या है. इट वाज लॉन्च्ड इन 2016. Ministry is Ministry of Commerce and Industry. What is the objective? Objective क्या है स्कीम का? To create inclusive, efficient and transparent platform for buyers and sellers to carry out procurement activities. Actually government wants कि जो micro and small medium जो buyers हैं और या फिर जो sellers हैं वो वहाँ पे आए, और buyer here is the government or the government departments. They can actually get their products from here. It has a multiple procurement modes. Procurement modes यहाँ पे multiple है. Either you can purchase directly, direct purchase कर सकते हो. Other thing is by bidding, reverse auction, bid, and other. There are many modes for your procurement thing. Next thing. If I talk about government e-marketplace, then it is a contactless, paperless and cashless. We have already talked about this. इसके अंदर इतना डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है. Please try to remember these things, that what is the launch year and what is the ministry involved. Now, अगर मैं कुछ मेजर डेवलपमेंट्स की बात करूँ स्पेसिफिक टू जेम पोर्टल, देन जेम आउटलेट स्टोर्स काफ़ी सारी जगह खुले हैं जहां आपको इन सारे ब्रांड्स के, आई होप यू नो अबाउट ऑल दीज ब्रांड्स लाइक योर खादी इंडिया तो काफ़ी फेमस है. इन CP यू विल फाइंड दिस ब्रांड. तो खादी इंडिया क्या करता है, बेसिकली जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट इकट्ठा करता है, उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग करता है एंड देन उसको सेल करता है. तो और जो भी कुछ प्रॉफिट होता है वो उसमें वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. सो देयरफॉर ऑल दीज आउटलेट स्टोर्स आर नाउ देयर for the common public. GEM, Confederation of India Industry ने they have signed an MOU to construct this center of excellence. एक MOU साइन हुआ था Confederation of Indian Industries और GEM के बीच में, to actually this will help to provide training and research to support GEM को और strengthen करने के लिए this MOU was being signed. Next is your GEM portal and your common service center, that is your CSC, and India Post have also signed an MOU ताकि लॉजिस्टिक सर्विस एकदम क्योंकि आपको पता है इंडियन जो पोस्टल सर्विस है, पोस्टल है, उनका एंड टू एंड है. मतलब आप कंट्री के किसी भी कोने पे किसी छोटे से छोटे गांव तक भी जा सकते हो. दैट्स व्हाई दे हैव मेड दिस MOU ताकि उस बायर या फिर उस सेलर को भी रीच किया जा सके
जो कि एकदम नूक एकदम कंट्री के कोने में रहता है वो भी ना छूटे, इंक्लूसिविटी रहे, दैट्स व्हाई दिस MOU is being signed. Next thing is your National Bamboo Mission and GEM have created a dedicated window for marketing bamboo goods. Now the other scheme, जहाँ तक GEM की बात है अगर याद करना है तो सबसे पहले तो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितना किया, 16% ऑफ द मर्केंटाइज वैल्यू. एंड द अदर थिंग इज योर लॉन्च ईयर एंड योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मुझे नहीं लगता इसके अलावा देयर इज मच दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस स्कीम. नेक्स्ट थिंग इज योर PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कॉम्पोनेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस PLI स्कीम, ये न्यूज़ में थी बिकॉज आई गेस गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपीज़ बजट इसको फिर से अलॉट किया है, so that's why this scheme was in news. Now let us see the launch year. The launch year was 2021 for the PLI scheme for drones and drone component. It is obviously drone है कुछ the aerial चीज़ है, therefore civil aviation is the ministry. Tenure is 3 years from 2022-23 to 2024-25. Outlay for the scheme is rupees 120 crores. Ministry has disbursed 30 crores to the beneficiaries during 2022-23. तो actually क्या था, हर एक साल पे 30 crores they were actually disbursing. अभी इस साल उन्होंने disburse किया है 30 crores. Objective is to incentivize manufacturing of drones and drones component indigenously. इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो. This is what the objective is about. तो मतलब फॉरनर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा. Whatever fund is there, it is for Indians only. तो it is the support will be provided to only to companies engaged in the manufacturing of drones and drone component in India. PLI का रेट कितना है, मतलब कितना वैल्यू एडिशन करना है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. PLI में कितना वैल्यू एडिशन करना है, इट इज 20%. तो ये हाईएस्ट है अमंग अदर PLI स्कीम्स. वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स है, अभी तो 18+ सेक्टर्स हो गए हैं जहाँ पे PLI स्कीम्स एक्टिव है. बट जो ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स है इसमें इफ यू वांट टू actually get the benefit under the scheme, then you have to do the value addition of 20%. So an important thing, minimum value addition norm has been set at 40% of net sales for drones and drone components instead of 50%. For the drone it is 40% and for drone component कितना minimum value addition होना चाहिए, it is 50%. PLI for a manufacturing is capped at 25%. कितना PLI manufacturer के लिए कितना है, it is 25% of the total outlay to follow widening of number of beneficiaries. तो मतलब एक जो ड्रोन बनाने वाला है उसको कितना मैक्सिमम मिल सकता है, 25% मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट तो ये ड्रोन और ड्रोन रिलेटेड स्कीम्स भी इम्पॉर्टेंट है because this was in news recently. तो therefore just give it a brief look कि ये स्कीम कब आई थी और इसके अंदर कितना इंसेंटिव है, इसका टोटल आउटले कितना है, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. अदर देन दैट नाबार्ड के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है डेप्थ में जाना. नाउ नेक्स्ट, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज नाबार्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेट अस डील दिस इन डिटेल. इंडियन Meteorological Department IMD is running an operational agro-meteorological advisory services. क्या रन कर रहे हैं, agro-meteorological devices advisory services वाया ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम. ये एक स्कीम है, पहले से चली आ रही थी. तो इसके अंदर IMD is what it is doing, it is actually establishing 530 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस कि कितने हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाबार्ड का एग्जाम है. देयरफॉर 530 एग्रोमेट यूनिट्स दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड. इसके अंदर दो तरीके से दे विल बी गिविंग योर थिंग, दैट विल बी वन under it medium range weather forecast at district and block level for 5 days is generated. तो medium range पे मतलब हर 5 दिन पे they'll be एक block को decide कर लेंगे और उसके basis पे they'll give the this forecast. Next thing is here, based on the forecast 130 agromet field units will be established. Agromet field units will be established to prepare agromet advisories on every Tuesday and Friday. तो हर Tuesday और Fridays को जो farmers होंगे, जो कृषि है ग्रामीण कृषि, उनको they'll be giving this advisory services. Next thing is your farmers can access weather details through this app which is your किसान सुविधा app. Try to remember this. कौन सी ऐप है, ऐप का नाम है किसान सुविधा. सोशल मीडिया का भी यूज़ करके दे डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि व्हाट्सएप आपको पता ही होगा. इफ़ यू आर अ डेलीआइट तो अभी क्या कहते हैं 16th को ही आई गेस, या 16th को ही नहीं 15th को 12:30 पे सबके फ़ोन बजे थे. तो उस तरह के सोशल मीडिया पे दे विल बी डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन अगर कुछ मास लेवल पे कुछ होता है इन दैट केस. Anyways, AMFUs are located at state agriculture universities, ICARs, IITs and your district agromet units at KVKs which is your Krishi Vikas Kendras.
I hope I am clear to you all. Next thing is your Startup India Yatra initiative. This initiative, as far as I talk about, ये काफ़ी recent का initiative तो नहीं है, पहले से ही start हो रहा था. Startup India के अंडर ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था. स्टार्टअप इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड इन 2016. तो ये इनिशिएटिव जो स्टार्टअप इंडिया यात्रा इनिशिएटिव है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि कब स्टार्ट हुआ था. इट वाज लॉन्च्ड इन 2017. तो इट इज़ टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एंड नॉन मेट्रो स्टेट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट कि रूरल और नॉन मेट्रो स्टेट पे इसका फोकस है एज फार एज योर स्टार्टअप इंडिया यात्रा इनिशिएटिव इज कंसर्न. ये चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया लिखा हो देन गो बाय 2016, और अगर लॉन्च ईयर पूछा हो स्टार्टअप इंडिया यात्रा इनिशिएटिव का 2017. हर महीने किसी ना किसी एक स्टेट में ये यात्रा होती है. अगस्त के महीने में it happened in Uttar Pradesh. Now let's see the features of this scheme. This initiative, it is a grassroots startup aspirants to provide incubation, mentorship and funding, which is very obvious. और ये कौन सी cities को target कर रहा है? two and three tier 2 and tier 3 cities. Northeastern states are also covered. You can see the northeastern states. These states are also covered. Moving ahead. Which ministry is responsible for Startup India Yatra initiative? If I want to ask you this, can somebody please tell me, इसमें से कौन सी ministry है जो कि ये Startup India Yatra initiative जो है is responsible for this initiative, या nodal ministry है for this? So the nodal ministry is your Ministry of Commerce and Industry. I hope I am clear. मूविंग अहेड, द स्कीम इज अ फार्मर सेंट्रिक स्कीम. कई बार आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है जिसमें पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन होता है, एंड देन यू हैव टू आइदर चूज द स्कीम या फिर स्कीम के कुछ पार्ट्स यू हैव टू कुछ स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं. अभी उस तरह के भी क्वेश्चंस है. फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. द स्कीम इज अ फार्मर सेंट्रिक स्कीम launched in 2017 under Department of Biotech. Department of Biotech is under Ministry of Science and Technology. The aim is to bring scientists and farmers in close conjunction. They want to actually have this collaboration between the scientists, the farmers and the academics, the institutions, all the academic institutions which are related to agriculture. So identify the scheme, which is the scheme they are talking about. I feel this question is very easy and you will be able to answer it. अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, if you know about all these schemes, तो इसमें से कौन सी scheme correct है, you will be able to answer. Please answer this, then we'll move ahead. Okay. So Biotech Kisan scheme, it stands for Biotech Krishi Innovation Science Application Network. Biotech Kisan, it was launched in 2017. Important because किसान, नाबार्ड, ये सब आपस में काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए अगर इस स्कीम से इन तरह की स्कीम्स में प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द लॉन्च ईयर. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यहाँ पे एक कैच है, बायोटेक किसान को देख के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लीज मत मारना आंसर में. इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट इज़ अ पैन इंडिया प्रोग्राम. और हब्स एंड स्पोक्स मॉडल को मीन्स यहाँ पे हब्स एंड स्पोक्स मॉडल कहीं इस तरह से होता है. दिस इज हब्स एंड स्पोक्स मॉडल, जिसके अंदर जितनी भी डिसीजंस या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इसके हब में होती हैं, एंड देन इट एक्चुअली पर्कुलेट्स टू योर स्पोक्स. या फिर स्पोक्स में जनरली छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड देन वो जो चीज़ है वो सारी हब्स में जाके एक्यूमुलेट होती है. दिस इज व्हाट हब एंड स्पोक्स मॉडल मीन्स. बेसिकली इस स्कीम में, बायोटेक किसान स्कीम में क्या करेंगे, इट वांट्स टू स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन फार्मर्स. तो बेसिकली वो ये चाहते हैं फार्मर्स खाली क्रॉप्स, नॉर्मल क्रॉप्स उगा के ना बेचें. दे वांट दैट देयर शुड बी सम वैल्यू एडिशन. तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन आर दे लुकिंग फॉर? So for 1,60,000 farmers have received the benefit under this scheme last year में कितने farmers को इसका फायदा हुआ? 1,60,000 farmers have been benefited from this Biotech Kisan scheme. The key features of the scheme are, देखो ये key features पिछले वाले में भी कुछ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है. यहाँ पे कितने हैं? 15 है. प्लीज ये जो फीचर है इसको याद रखना. ईच हब क्रिएट्स नेटवर्क विद टॉप क्वालिटी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपके स्टेट एग्रीकल्चर्स हो गए, कृषि विकास केंद्र हो गए, ICARs हो गए, तो ये सब. उसके बाद बायोटेक किसान हब, एक हब भी बनाया जाएगा विच विल बी अ टिंकरिंग लेबोरेटरी. यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स आए या फिर कोई नया प्रोडक्ट जनरेट किया जा सके फॉर फार्मर्स. नाउ द अदर थिंग,
What are the key features under this? Basically इसके अंदर काउंसलिंग करेंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे फार्मर्स में अबाउट द इम्प्रूव्ड सीड क्वालिटी या फिर हाउ टू प्लांट बेटर, मतलब प्लांटिंग स्टॉक ऑफ वेजिटेबल इंटरवेंशंस, हाउ टू क्रिएट दिस इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक ऑल्सो. तो मतलब खाली एग्रीकल्चर ही नहीं, एलाइड सेक्टर में भी दिस बायोटेक किसान स्कीम इज फंक्शनिंग. सो दिस इज अ पॉइंट दैट नीड्स टू बी रिमेंबर. खाली एग्रीकल्चर नहीं है, एलाइड एक्टिविटीज भी है. Next thing, the scheme is farmer centric scheme. By now you must be knowing that iska answer, correct answer is option number D, which is your biotech kisan scheme. Now, rice fortification under targeted public distribution system, which is your TPDS, will be done till which year? Rice fortification under target public distribution system will be done under which year? Very very important, because अभी रिसेंट में ये 2-3 बार न्यूज़पेपर में और PIB में भी आया है. तो प्लीज कैन समबडी आंसर. नेक्स्ट, ये फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई थी 2022 में. बेसिकली अनीमिया और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. गवर्नमेंट प्लांट की डायरेक्ट इंटरवेंशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इनडायरेक्टली इंटरवीन करते हैं फूड हैबिट्स में. तो व्हाट डज गवर्नमेंट डिड इज, गवर्नमेंट फोर्टिफाइड. गवर्नमेंट वैसे पहले भी फोर्टिफिकेशन कर चुकी है, ऑयल का भी करते हैं, बट इस टाइम ये जो न्यूज़ है स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट योर फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफिकेशन जिस भी राइस की करते हैं उसको जूट के बैग में पैक करते हैं और उसके ऊपर लोगो लगा देते हैं +F का. आप देखना कभी कभी आप जो सोयाबीन ऑयल या वो पैकेट वाला जो ऑयल खरीद के लाते हैं उसमें भी इस +F का साइन होता है, विच एक्चुअली कन्फर्म्स दैट इट इज़ बीइंग फोर्टिफाइड. उसके अंदर कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट वैल्यू डाली गई है. इस राइस में क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू डाली है? आयरन, फोलिक एसिड एंड योर विटामिन B12. बेसिकली दिस इज डन टू कंट्रोल एनीमिया. एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा था, दैट्स वाई. इसका ड्यूरेशन क्या है? टिल 2024. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू अबाउट. व्हाट इज द आउटले? द आउटले ऑफ द स्कीम इज ₹2700 करोड़ पर एनम. हर साल 2024 तक इतना पैसा दिया जाएगा. ऑल्सो द कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब ये कैसी स्कीम है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. नाउ इफ आई वांट टू टेल यू कि ये जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये किस एक्ट के अंदर आता है, या फिर ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये किन किन एक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है उसमें, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण PM पोषण, और यू कैन से योर मिड डे मील स्कीम. आई होप मिड डे मील स्कीम के बारे में सबको पता है. और अदर वेलफेयर स्कीम्स जिसमें भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन सब में दे विल यूज दिस फोर्टिफाइड राइस. नेक्स्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 फेजेस में हुआ है. द फर्स्ट फेजेस जो कि 2022 तक स्टार्ट हुआ था, इट एक्चुअली कवर्ड ओनली 2 स्कीम, विच इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड योर PM पोषण. In phase 1 was a success, therefore phase 2 was started, in which there was a special focus given on aspirational district as well as high burden districts. ये high burden districts वो थी जहाँ पे अनीमिया या फिर स्टंटिंग बहुत ज़्यादा थी. therefore इनको phase 2 में सिलेक्ट किया था. और जब इनमें 100% टारगेट was achieved, then phase 3 was started. phase 3 में जो भी phase 2 में जो भी चीज़ें बच गई थी और प्लस जितनी भी अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर राशनिंग, जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी कवर किया जाएगा अप टिल March 2024. So I have already discussed this. Next, what is the budgetary outlay of national mission in interdisciplinary cyber physical system? I am not discussing this national mission in interdisciplinary cyber physical system. उस तरह से ऑप्शन इस तरह से फ्रेम किया है. बजटरी आउटले इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो स्कीम है इट इज़ रिलेटेड टू योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मैं ऐसा नहीं कहूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पर फेज़ 1 में क्वेश्चन आ सकता है. और फेज़ 1 में डेफिनेटली कोई बजट का क्वेश्चन आएगा या फिर सिंपल मिनिस्ट्री पूछ लेगा. बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा, जितना डेप्थ में वो बायोटेक किसान में या फिर एग्रो बेस्ड सर्विसेज, वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज में दे कैन आस्क. तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा, इसलिए आई हैव नॉट टच्ड अपॉन दैट फैक्टर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो as I have already told you, interdisciplinary cyber physical system, basically they want new age technology to come up in different sectors. तो जो smart city mission है, if I want to explain it कि what is cyber physical system, तो जैसे smart city mission चलाते हैं, they want कि street light अपने आप on हो जाए.
एक टाइम पे स्ट्रीट लाइट अपने आप ऑन हो जाए, जैसे मान लो कोई अंधेरा हो गया बिकॉज बारिश आने वाली है, सूरज चला गया, तो इन दैट केस स्मार्ट इस तरह के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए दे आर एक्चुअली मर्जिंग योर फिजिकल सिस्टम्स विद योर कंप्यूटर, विद योर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, विद योर एआईज। तो अगर इसका लॉन्च ईयर बोलो तो इट इज 2018। The total outlay is 3,660 crores. Duration is 5 years. And the department और द मिनिस्ट्री इज योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स यू कैन ऑलरेडी सी। Other than that, it will establish 15 numbers of technology innovation hubs, 6 application innovation hubs, and 4 technology translational research parks. So these are the 4 areas in which they are going to work: technology development, skill development, entrepreneurship, and the last one is your international collaborations, which is very generic. I don't think so question will be asked from this very topic. वैसे तो I would say कि you can just tell कि इसका आंसर तो ये है, but barring this, देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM पे 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था। अब ये स्कीम अगर देखो तो ये रूरल इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 मार्कर क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की स्कीम को आप डेप्थ में कवर करो, बिकॉज अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगी तो भी डेप्थ में पूछी जाएगी, खाली ये नहीं पूछेगा NRLM की मिनिस्ट्री कौन सी है, नहीं। बट अगर वो ये नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करेंगे तो दे कैन आस्क योर बजटरी आउटले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का फोकस इस पे है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अदर चीज, अगर दूसरी चीज बताऊँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ आप मिनिस्ट्री देख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब चीजें एक बार रीड कर लेना, बट हाँ इतने डेप्थ में लिखने के लिए नहीं आएगी, तो उतने डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं है क्रैश कोर्स में एटलीस्ट। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी स्कीम है। अगर आप स्कीम आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड, विच इज द करेक्ट कोड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ it is a central sector scheme of Ministry of Home Affairs. The question is, the scheme was first announced in 2022 budget. It aims to provide comprehensive development of villages on the border with China. और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वो कौन सी लाइन है जो पूरे पैसेज को डिफाइन कर सकती है, वो है villages on the border with China. यहाँ से आप पिक कर सकते हो which scheme is this question talking about. I'm giving you just 10 seconds, try to identify कौन सी स्कीम है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में था स्कीम। I hope by now you might have seen कि this scheme talks about your Vibrant Village program. So it is a central sector scheme. Vibrant Village program क्या central sector scheme है under Ministry of Home Affairs. First statement ये कहती है। Next statement says that it was officially launched from Kibito village in Arunachal Pradesh. Financial allocation from the scheme is rupees 4,800 crores, and the first phase in presently it's the first phase that is running. इसमें 662 villages have been identified from 7 states bordering China have been identified. I want to tell you one thing. कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो ना, तो प्लीज एक फैक्ट के बेसिस पे आंसर मत लगाना। जैसे आपने देखा 662 विलेज, अगर स्कीम ऊपर से पड़ी होगी यार हाँ 662 इज करेक्ट, 7 स्टेट्स, यहाँ कैच है, दे आर नॉट 7 स्टेट्स नहीं है, 4 स्टेट्स प्लस एक यूटी है। तो हालांकि चाइना से बॉर्डरिंग स्टेट्स चाहे बहुत सारे हों, बट उसके अंदर कौन से कुछ स्टेट्स हैं जो स्पेसिफिकली फोकस किए गए हैं अंडर दिस वेरी प्रोग्राम। तो पहले एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कब लॉन्च हुई थी, तो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, और कब तक चलेगी 25-26 तक। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बजट का आउटले इसके लिए याद कर लेना, इट इज 4,800 करोड़, जिसमें से 2,500 करोड़ स्पेसिफिकली रोड के लिए ही दिया जाएगा। अदर थिंग इज ऑफिशियली कहाँ से लॉन्च हुई, येस ऑफिशियली लॉन्च की स्टेटमेंट कभी कभी क्वेश्चंस में पूछी जाती है, बिकॉज ये बार बार जब भी वाइब्रेंट विलेज का क्वेश्चन आता है, न्यूज़पेपर हो या फिर आपकी पीआईबी हो, दूसरी तीसरी लाइन में इस विलेज का नाम जरूर लिखा जाता है, बिकॉज दिस इज अ विलेज दैट इज बॉर्डरिंग योर चाइना, दैट्स वाई ये बार बार पूछ रहा है, बार बार बोलता भी है। रिमेंबर दिस। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली इतना ही है, दे वांट इंक्लूसिव ग्रोथ हो उन विलेजेस की जो बॉर्डर पे लाई करते हैं। आज से पहले गवर्नमेंट बॉर्डर एरियाज को बिल्कुल भी फोकस नहीं करती थी, बट नाउ अडेज गवर्नमेंट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दीज बॉर्डर एरियाज। गवर्नमेंट वांट कि यहाँ पे भी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो जितना बाकी स्टेट्स में रहता है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज इन दिस स्कीम गवर्नमेंट हैज कवर्ड 4 states. What are these 4 states? It's your Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim, and UT, which is your Ladakh.
इफ आई टॉक अबाउट द फोकस एरिया, तो सारी ही वो चीज़ें जो आप स्टेट्स में एक वेल डेवलप स्टेट में देखना चाहते हैं वो सब इन विलेजेस को भी प्रोवाइड करेंगे। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जैसे रोड हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल, इंटरनेट, तो ये जनरलिस्टिक है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सोच सकते हो तो सब कुछ होगा। नेक्स्ट फर्स्ट फेज आपका 662 विलेजेस में ही लॉन्च हुआ था, दिस इज राइट, और 455 विलेजेस ओनली अरुणाचल प्रदेश से ही है, और अरुणाचल प्रदेश में ही ये स्कीम श्री अमित शाह ने वहीं पे ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट थिंग, इसमें वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे। ये एक्शन प्लान्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। इसमें क्या करेंगे, इन प्लान्स में ये इंश्योर करेंगे कि जितनी भी सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स है, क्योंकि ये कैसा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, तो इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों की स्कीम्स का 100% सैचुरेशन हो, मतलब 100% बेनिफिट इन लोगों को मिले, इन विलेजर्स को मिले, तो उसका फोकस करा जाएगा इन वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स में। ट्राई टू रिमेंबर दिस एज वेल। नाउ as I have already told you, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट्रल सेक्टर नहीं है। ऑफिशियली लॉन्च्ड, यस दिस इज राइट, एलोकेशन इज डेफिनेटली 4800 करोड़ एंड फर्स्ट फेज वाज इन 662 विलेजेस, बट स्टेट्स का नंबर करेक्ट नहीं है। नाउ कैन यू प्लीज आंसर द विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, इट इज नॉट ऑप्शन 1 and 3, इट इज ऑप्शन 2 and 3 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट थिंग, Which ministry has launched your national SC/ST hub scheme? इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने आपकी नेशनल SC/ST हब स्कीम लॉन्च करी है? प्लीज अगर किसी को पता है तो बताओ। इज इट कॉर्पोरेट, इज इट MSME, इज इट कॉमर्स, इज इट ट्राइबल एंड इज इट सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट? इस तरह की स्कीम्स में देयर इज जनरली अ कंफ्यूजन। नेशनल SC/ST हब स्कीम है, हो सकता है सोशल जस्टिस हो, ट्राइबल भी हो सकता है, MSME भी हो सकता है, बाकी कॉर्पोरेट में भी आप हटा दो एक बार के लिए, कॉमर्स भी शायद आप हटा दो क्योंकि SC/ST है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं होगा कि कॉमर्स हो, बट स्टिल ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, सो दैट्स व्हाई इन जब स्कीम्स को पढ़ो तो मिनिस्ट्री का नाम एकदम अलग से करके लिख लिया करो। तो लॉन्च ईयर 2016 में लॉन्च हुई थी और इसको फिर एक्सटेंड कर दिया था अप टिल 2025-26। आउटले कितना है, 438 करोड़ फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब ये जो एक्सटेंशन पीरियड मिला है इसका बजट है 438 करोड़। मिनिस्ट्री इज योर MSME, ट्राई टू रिमेंबर दिस। योर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, नोडल मिनिस्ट्री तो ये है, पर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC, विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME ओनली। इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज SC/ST से नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो कि आपका SC/ST ओन्ड है, या फिर अगर SC/ST पार्टनरशिप में है तो 51% शेयर SC/ST का होना चाहिए, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो भी 51% शेयर किसका होल्ड होना चाहिए, SC/ST का, तभी इस स्कीम में दे विल गेट द बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव्स तो आई फील आप सबको पता चल गया होगा, बिकॉज मिनिस्ट्रीज आपके बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे इन SC/ST, और उसके अलावा इनको क्या देने की बात करेंगे, प्रोफेशनल सपोर्ट, ताकि ये पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ। अदर थिंग, इस स्कीम में कुछ सब कॉम्पोनेंट्स हैं, लाइक योर स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, योर स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, योर सपोर्ट फॉर एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू वेरियस रीइंबर्समेंट स्कीम्स, और योर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एस्पायरिंग SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इट वॉज जस्ट देयर सो आई जस्ट इनकॉर्पोरेटेड। अब आई वांट टू टेल यू द की फीचर्स। इसके अंदर की फीचर्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वांट्स कि एटलीस्ट इनकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है उसका 4% जो टोटल प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट का वो इन्हीं यूनिट से आए। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस अपॉन, कि गवर्नमेंट जितना भी प्रोक्योर करती है उसका 4% SC/ST ओन्ड यूनिट से आना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट SC/ST एंटरप्रेन्योर्स इन वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्रेडिट लिंकेजेस बढ़ाना चाहती है। ऑल्सो फॉर दिस दे हैव गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश योर नेशनल SC/ST ऑफिस हब्स, ये पैन इंडिया बेसिस पे एस्टैब्लिश करेंगे टू गिव मेंटरिंग एंड सपोर्ट टू योर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। आई बिलीव दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्कीम है और उसके नीचे कोई ऑफिस खोलेंगे तो उसी को ही एनहांस करने के लिए खोल रहे हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड योर नेशनल SC/ST हब, तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना।
एक्चुअली ये योजना इसलिए यूज में थी बिकॉज देयर इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसने अपनी CSR एक्टिविटी के तहत, CSR एक्टिविटी के अंडर इट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसमें वो थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को इट इज़ हेल्पिंग। तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स अबाउट दिस योजना। प्लीज टेल मी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। देर इज़ ऑलवेज दिस थिंग कि यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो करेक्ट होगा और एक ऑप्शन इनकरेक्ट का होगा, तो देयरफॉर फोकस हेयर। नेक्स्ट थिंग इज इट वाज लॉन्च इन 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो अगर डिजीज़ और उससे रिलेटेड है तो देयर आर चांसेस कि मैक्सिमम यही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Patients will be given rupees 500 monthly assistance per month, and it is a part of a CSR initiative of ONGC. Please tell me if somebody knows what's the incorrect option, they can actually comment. Now let's move ahead. थैलेसेमिया बाल सेवा योजना की अगर मैं बात करूं, ये 2 फेजेस में लॉन्च हुई थी और अभी इसका तीसरा फेज स्टार्ट हुआ है। पहला फेज 2017 से 2022 तक था, तो ऑब्वियसली लॉन्च ईयर हुआ आपका 2017, और फेज 2 23 तक अभी मार्च 23 में खत्म हुआ था, और अब गवर्नमेंट ने थर्ड फेज भी लॉन्च कर दिया है। हु इज इम्प्लीमेंटिंग दिस? इट इज एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ मिशन, और ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये वन टाइम, एक बार का क्यूरेटिव, मतलब ठीक करने की अपॉर्चुनिटी देती है टू दोज हु आर फाइनेंशियली डिसएडवांटेज। तो सबको नहीं देगी, सिर्फ जिनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज है, सिर्फ उनको, उन्हीं पेशेंट्स को they will be giving this one time curative opportunity. Now if I want to tell about this thalassemia, तो what is thalassemia? It is nothing but a blood disorder, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें आप देखेंगे कि इनका हेमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए इनको बाहर से हेमोग्लोबिन देना पड़ता है टाइम टू टाइम। Now as I was talking about, there is a public sector undertaking which is your Coal India Limited, which has started this CSR initiative by the name Hemopoietic Stem Cell Transplant Program. So इस transplant program में they will assist at least 200 patients, और इन 200 patients को 10 लाख तक का with a package of cost not exceeding rupees 10 lakh per HCST, मतलब एक पर्सन को 10 लाख तक का, 10 लाख तक का they will give the support. Other thing is the success completed in 356 bone marrow, अभी तक कितनी सक्सेस हुई है? तो दे हैव शोन दिस सक्सेस। आई बिलीव इसको यू कैन इग्नोर, बट अदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, स्पेशली कौन है, कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इट इज योर कोल इंडिया इनिशिएटिव। Now thalassemia बाल सेवा योजना पोर्टल, there is a portal, obviously government how will government interact with the citizens? तो उसके लिए कोई चैनल होगा, तो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ऐप या फिर पोर्टल बना देती है। इस केस में दिस पोर्टल का नाम योजना के साथ, योजना के जैसा ही है, जिसकी हेल्प से दे कैन डू रियल टाइम ट्रैकिंग कि कितने रजिस्ट्रेशन हुई है और कितने लोगों को इससे हेल्प मिली है। So that's what government is trying to do. Now the question, it was launched in 2017, yes, very much correct, by Ministry of Health and Family Welfare. Definitely this is also correct. The patients will be given rupees 500 monthly assistance per month. देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूरेटिव असिस्टेंस दे रहे हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अगर कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स पेपर में आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आपको पढ़ के लगेगा हाँ यार बीमार है, गरीब है, हो सकता है 500 रुपये दे देते हो, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द CSR इनिशिएटिव ऑफ नॉट ONGC, इट इज ऑफ CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। सो द क्वेश्चन सेज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा? सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which ministry has launched your Deep Ocean Mission? Deep Ocean Mission किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? So these are the ministries. अब अगर आपने इस मिशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा हो तो डेफिनेटली देयर इज अ कैच फॉर यू। इस तरह के स्कीम्स में, डीप ओशन मिशन में, अगर नाबार्ड में आएगा तो सिर्फ फेज 1 में आएगा, दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर फेज 2। फेज 1 में भी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो मिनिस्ट्री पूछ लेगा या फिर बजटरी आउटले पूछ लेगा या कोई रीसेंट डेवलपमेंट, कोई नाम इससे एसोसिएटेड होगा। इन दैट केस ओनली दैट विल बी आस्क्ड। नाउ लेट अस गो टू द मिशन इटसेल्फ। इट वाज लॉन्च इन 2021, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि डीप ओशन मिशन थोड़ा साइंटिफिक मिशन है, तो हो सकता है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से इसको कंफ्यूज कर दो। तो प्लीज़, इट इज़ अर्थ साइंसेज, हालांकि ओशन है बट मिनिस्ट्री अर्थ वाली है, प्लीज़ इसको याद करना, क्योंकि ओशन के अर्थ तक, मतलब ओशन के बेस से ही वी वांट टू एक्सट्रैक्ट सम रिसोर्सफुल थिंग्स, बी इट लिविंग बी इट नॉन लिविंग। तो मतलब इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही रिसोर्सेज पे फोकस है, और ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी स्टेटस को एनहांस करने के लिए इंडिया वांट्स टू एक्चुअली हार्नेस, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, तो वी वांट टू हार्नेस दैट अपॉर्चुनिटी
द एस्टिमेटेड आउटले कितना है 4077 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फेज 1 जो है वो 3 साल के लिए है और उसमें कितना मिलेगा 2823। इतना डेप्थ में मत जाना, बट ये तो याद करने की कोशिश कर ही सकते हो कि बजटरी आउटले कितना है और ड्यूरेशन कितनी है 5 साल। नेक्स्ट, ये 6 थीम्स है। थीम्स बहुत ही जेनेरिक हैं। अगर ओशंस की बात करें तो उसमें क्या बात करेंगे, डीप सी माइनिंग की बात करेंगे, किसकी हेल्प से, रोबोटिक्स की हेल्प से। ओशन और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएंगे ताकि हम कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी को जो कि सी के अंदर रहती है। एक्सप्लोरेशन और सर्वे करना चाहते हैं, एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, वी वांट टू हार्नेस द ओशनिक एनर्जी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवांस्ड मरीन स्टेशन टू फॉर ओशन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो रिसर्च R&D के लिए भी दिस इज वन ऑफ द थीम। तो थीम तो काफ़ी जेनरिक है। थीम आई फील अगर क्वेश्चन में वैसे तो नहीं आएगी मुझे जहाँ तक लगता है, बट अगर आएगी भी तो बहुत ही जेनरिक है, यू विल बी एबल टू गेस। नेक्स्ट थिंग, हाई लेवल कमिटी कॉम्पोजिशन। इसमें अभी रिसेंट में एक हाई लेवल कमिटी बनी थी। इस कमिटी के को चेयर कौन करेगा? ऑब्वियसली अगर कमिटी जो है वो ये जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है तो कमिटी को चेयर भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से ही करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेडेड दैट। और इसके अंदर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज भी ऑब्वियसली होंगी क्योंकि ये अकेला नहीं कर सकता। एनवायरमेंट से रिलेटेड काम है तो एनवायरमेंट वाली मिनिस्ट्री होगी, पैसा भी चाहिए होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। ऑब्वियसली आप ओशन में एक्सप्लोर कर रहे हो, यू कैन रीच मतलब इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके वहाँ पे 200 मीटर्स तक यू हैव योर उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद जो फॉरेन टेरिटरीज आ जाती है, बिकॉज जो ओशन है वो फॉरेन किसी और के भी पार्ट हो सकता है, दैट्स वाई योर एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज इज ऑल्सो देयर। सो देयरफॉर यहाँ पे बहुत सारी और भी मिनिस्ट्रीज है। योर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग विल ऑल्सो बी देयर, वाज ऑल्सो देयर इन दिस हाई लेवल कमिटी। तो ये तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट थिंग इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड योर डीप ओशन मिशन? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। प्लीज इसको याद रखना, एटलीस्ट बजट आउटले और ये इसकी मिनिस्ट्री। नेक्स्ट थिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वास्तिक इनिशिएटिव। स्वास्तिक इनिशिएटिव क्या है? बिलीव मी, स्वास्तिक का फुल फॉर्म याद कर लेना। फेज 1 में पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस वी इन दिस स्वास्तिक। नेवरदलेस, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज your ministry of Ayush who has launched this. Second says it focuses on taping ancient traditional knowledge for treating diseases and natural resource management. Third says it will use digital media platform to create awareness through videos in regional languages along with English and Hindi. कहीं ना कहीं ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये अगर पेपर में आए तो मान के चलना 90% केसेस में तो ट्रू ही है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हैज डेवलप दिस भाषिनी पोर्टल या फिर भाषिनी ऐप, जिसमें क्या हो रहा है कि ये AI एनेबल्ड ऐप है। इंग्लिश हिंदी में कंटेंट डालो, सीधा रीजनल लैंग्वेज में इट कैन पब्लिश। और AI फॉर यू ये एक IIT मद्रास का इनिशिएटिव है, IIT मद्रास का इनिशिएटिव है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव्स है ना, तो अगर किसी भी स्कीम में आता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस कैन बी ट्रू बिकॉज आजकल इस पे खूब काम चल रहा है। नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ यू नो द आंसर प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। ओके, तो स्वास्थ्य की फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज इनिशिएटिव। तो साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज, दिस इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर स्वास्तिक। प्लीज रिमेंबर दिस। ये आ सकता है, पूछ लेंगे कि वी क्या है, स्वास्तिक में वी क्या है। लॉन्च ईयर इसका 2021 था। ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय योर CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज नॉट द आंसर। एम क्या है? द एम इज ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डिसेमिनेट कर पाए इन वेरियस लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्टिव भी वही है ताकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को साइंटिफिक वैलिडेशन दिलाया जा सके, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको वैलिडेट कराया जाए दैट येस व्हाट एवर ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया हैज इज एक्चुअली साइंटिफिकली ऑल्सो रेलिवेंट, एंड ऑल्सो टू फॉस्टर साइंटिफिक माइंडसेट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग। So the correct option is option number 2 and 3. The first statement is incorrect as I've already told you. Next thing. So the next scheme is about your Meri Life Mera Swachh Shahar. These are the 3 statements. What are the statements? The first says that this scheme, या फिर this initiative, if I want to tell it more correctly, then this initiative is of Ministry of Jal Shakti. इसको तो वैसे स्कीम को समझ देख के पता चल रहा है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, शहर के बारे में बात कर रहे हैं। जल शक्ति होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो क्या हो सकता है इसके अंदर? अगर कोई गेस करना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इट फोकसेस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स सी. अच्छा, वैसे मैं बताना चाहूँ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वेस्ट को रिसाइकल भी करे, चाहे तो उसी को करे और या फिर उतनी ही लेवल पर रिसाइकलिंग करे. जैसे अमेजोन आपको कोई प्रोडक्ट, कोई पार्सल भेजता है, तो वो जो पार्सल है वो किसी प्लास्टिक बैग में आता है, तो ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसने उसको जनरेट किया, उसको वो रिसाइकल भी करे. दैट इज व्हाट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आए थे 2018 में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे मेंशन था. Next thing, it encourages the cities to establish reduce, reuse, recycle RRR centers for promoting a circular economy. What is circular economy? मतलब जैसे अगर मैं प्लास्टिक की ही बात करूं तो प्लास्टिक को मैं या तो रीयूज करूं या फिर रिसाइकल करूं और वापस से उसको उसी इकोनॉमी में यूज करूं. दैट इज व्हाट सर्कुलर इकोनॉमी इज. In this case, in the case of your waste. Now please tell me which is the correct answer. Let us now see. जैसे मैंने बोला, शहर से ही समझ में आ रहा था, जल शक्ति के होने के चांसेस थोड़े से कम है. इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. बेसिकली ये 3 वीक्स का इनिशिएटिव था which started on World Environment Day 5th of June 2023. इसका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, टू एस्टैब्लिश these centers टू प्रमोट योर सर्कुलर इकोनॉमी. स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के लिए भी इट वांट्स टू एक्चुअली क्रिएट अवेयरनेस. दैट्स व्हाट दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट. एंड टू एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन लाइफ. मिशन लाइफ इज लाइफ फॉर एनवायरमेंट. लाइफ के ऊपर तो आरबीआई में भी क्वेश्चन था. आई विल आल्सो टेक दिस स्कीम इन डिटेल. आरबीआई में फेज 2 में देयर वर 2 or 3 क्वेश्चंस ऑन दिस, जिसमें मिशन लाइफ का पैराग्राफ था, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्कीम आर दे टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट थिंग, so these are the 3 options. Now please try to tell me what will be the answer. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्कीम में नहीं लिखी है तो मतलब वो इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज योर ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली थिंग दैट इज करेक्ट. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IDEX. व्हाट इज IDEX? sorry IDEX is innovation for defense. So IDEX Prime aims to support startup acquiring requiring support beyond rupees 1.5 crore to rupees 10 crore. So IDEX will actually support only those startups जिनका जो funding requirement है it is beyond 1.5 crore up to 10 crores. Next thing is इसको fund को manage कौन कर रहा है? It will be managed by DRDO. This is what the statement says. And IDEX is flagship scheme of Ministry of Defense. चलो ये तो ठीक है. IDEX की अगर किसी को फुल फॉर्म पता होगा तो शायद ये मिनिस्ट्री तो वो पहचान ही लेगा. Now please tell the correct option. IDEX की फुल फॉर्म है Innovations for Defense Excellence. Very important. Please try to remember the full form. If I ask you about the launch year, it is 2018. Ministry of Defense की flagship scheme है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ऑब्वियसली डिफेंस जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तो नहीं हो सकती, बिकॉज डिफेंस एज अ सेक्टर इज कम्प्लीटली अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर मैं एम की बात करूँ तो ये चाहते हैं स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज या फिर एकेडमिशिया से लिंक हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एंड ऑल्सो दे वांट टू गिव बूस्ट टू आर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स. दैट्स व्हाट दिस IDEX इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट. रीसेंट माइलस्टोन से कि इसने 250th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज़. वैसे तो 2018 की स्कीम है. IDEX Investors Hub has also been created. So IDEX Investors Hub इस साल लॉन्च हुआ था. That's why इस साल शायद जैन में लॉन्च हुआ है. That's why also this initiative was in news. To accelerate investment in the defense sector, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए 9 लीडिंग इन्वेस्टर्स ने जनवरी में जब ये हब हुआ था, इस हब में 9 लीडिंग इन्वेस्टर्स ने मोर देन 200 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में दे हैव पम्प्ड इन. दैट्स व्हाट दिस न्यूज़ सेज. नाउ इफ आई वांट टू टेल यू कि कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंडिंग और मैनेजिंग इनको फंड कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो सब कर रहा है, दैट इज डन बाय योर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट DRDO. DRDO रिसर्च वर्क करता है, वो क्यों फंडिंग और मैनेजमेंट देखेगा. दिस थिंग इज डन बाय योर DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी registered under Section 8 of Companies Act 2013. DIO will provide high level policy guidance and also it will support funding and managing part of this initiative. Next thing, the correct option is option number 1 is correct because yes, funding support 1.5 crore से 10 crore की है. Second statement is not correct because it is your defense DIO, Defense Innovation Organization, and your third statement is correct that it is a flagship initiative of Ministry of Defense. This is very much correct.
देखो डिफेंस में इंडिया इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोक्योर कर रहा है स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए, स्पेसिफिकली डिफेंस में। देयरफॉर अगर डिफेंस से रिलेटेड इस तरह की कोई न्यूज़ रहती है, प्लीज़ ट्राई टू टैप दैट। नेक्स्ट थिंग, इन एडिशन टू एन इनिशिएटिव द सशक्त पोर्टल वॉज लॉन्च्ड। एक इनिशिएटिव था जिसमें ये पोर्टल लॉन्च किया था, सशक्त पोर्टल, विच वॉज लॉन्च एट G20 इवेंट। रिसेंट में G20 इवेंट हुआ था वहाँ पे, फॉर ट्रेनिंग ऑफ 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स। 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। What was the occasion of launch of the event? अब देखो ना, इसमें इनिशिएटिव बताया है कौन सा है, और ये पूछा है ये इनिशिएटिव इसमें से कौन से दिन पे हुआ था। अ वेरी वेरी जेन्युइनली टफ क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ा होगा तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस, दैट इज ओके, बिकॉज ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। पहले तो इनिशिएटिव बताया और इनिशिएटिव से रिलेटेड पोर्टल बता दिया, इवेंट बता दिया कौन सा है, वो भी बता दिया इस इवेंट में क्या किया है, बट ये अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो कौन सी ओकेजन थी जब ये इवेंट लॉन्च हुआ था। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस इनिशिएटिव। ये 75-25 इनिशिएटिव है। 75-25 क्यों? बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है दैट इट वांट्स टू स्क्रीन एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल जिनको हाइपरटेंशन है, मतलब नॉर्मल मैन में वो इसको बीपी कहते हैं, जिनको हाइपरटेंशन है एंड डायबिटीज है बाय 2025। तो मतलब 75 मिलियन और 2025, 75 मिलियन और 2025, दैट इज वेयर इट्स नेम इज 75-25 इनिशिएटिव। तो कौन सा इनिशिएटिव है 75-25? किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली अगर हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद योर WHO। लॉन्च कब हुआ था? हाइपरटेंशन डे पे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th of May 2023। इसी G20 के इवेंट में मई के मंथ में लॉन्च हुआ था। This initiative marks the world's most extensive expansion of non-communicable diseases. So now India is actually focusing on non-communicable diseases, और ये world का सबसे extensive initiative है। That's why this was also very much in news. Next thing, if I want to talk about this portal, सशक्त पोर्टल की फुल फॉर्म है सिस्टमिक असेसमेंट फॉर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली व्हाट दिस पोर्टल डज इज सिस्टमिकली असेस करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की नॉलेज को और ऑल्सो उनको ट्रेन करता है। इसमें 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी गई थी स्पेसिफिकली फॉर ट्रीटिंग दिस हाइपरटेंशन एंड योर डायबिटीज। So I hope the correct answer by now you must have realized it is your World Hypertension Day. That's all as far as this lecture is concerned. This I want to tell you one thing, that if you are if you are able to answer the questions then very good. आप एक बार PDF इसको डाउनलोड करके और इसको दोबारा से एक बार रीड कर लेना, और अगर आप नहीं कर पा रहे नेवरदलेस कोई बात नहीं, आज एक बार रिवाइज कर लो, एक बार 2 दिन छोड़ के रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा, बार बार रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट ये 20-25 स्कीम्स आपको आराम से याद हो जाएंगी, और फिर जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो हम इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट 30+ स्कीम्स कवर करूँ। तो आप उसको भी रिवाइज करना एंड दिस विल हेल्प यू इन रिटेनिंग बेटर वेज। थैंक यू एंड प्लीज़ कमेंट करना जो भी आपको लगता है आंसर है, सो दैट इट्स अ बिग बूस्टर फॉर मी। मुझे भी लगेगा कि येस यू गाइज वांट सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।